वेलकम माय प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट। तो आज हम जो चीज़ जानने वाले हैं वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है लॉजिकल गेट्स। तो गेट्स के ए टू जेड बेसिक के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। इसके जो नेक्स्ट डे है उसमें हम गेट कॉन्वर्सेशन और बुलियन अलजेब्रा के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, गेट क्या होता है? गेट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए गेट का जरूरत पड़ता है। जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के वो है गेट्स। गेट्स कई तरह के होते हैं, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स। बेसिक गेट्स जो होते हैं वो है 3 टाइप के। नंबर 1 OR गेट, नंबर 2 AND गेट, OR गेट, नंबर 2 AND गेट, नंबर 3 NOT गेट। और यूनिवर्सल गेट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट। One is NAND gate and other is NOR gate। अब ये बेसिक गेट और ये यूनिवर्सल गेट क्यों है? क्योंकि बेसिक गेट इसीलिए किसी भी जो डिजिटल सर्किट है उसको बनाने के लिए ये 3 गेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये 3 गेट को रिपीटेड यूज करके हम और कोई तीसरी गेट को नहीं बना सकते, इसीलिए इसको कहते हैं बेसिक गेट। बट repeated use of NAND and NOR gate, we can use many other gates. Also, OR gate, AND gate and NOT gate can be found by repeated using of NAND and NOR gate. So, these 2 types of gate are called universal gates. Besides this, 2 OR universal gates are there, which is called XOR gate and XNOR gate. इसका हमारे सिलेबस में इतना गुरुत्व नहीं है, एक्स और एक्स नॉट। तो आज हम जानेंगे बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट के बारे में। तो फर्स्ट गेट है वो है OR गेट। तो OR गेट के बारे में हम लोग जानेंगे। OR गेट होता है किसी भी गेट का 2 इनपुट होता है। As this is the digital circuit and we know in digital electronics only binary number are important, that is only the 2 state 0 or 1. So if this type of gate OR gate, so if we draw a such type of circuit in which there are 2 keys and there is a bulb here, this is A, this is B, that is key number 1 and key number B, and a battery is connected between them plus minus V. Then when the lamp will glow or on, current passes through positive to negative terminal as we know. So when the 2 keys are open, then the bulb will not glow, because we know that for flowing of current broken circuit is not applicable. So if we take the open as state low or 0 and close as state 1 or high, then what should we get? So if we take A and B as 2 input and Y as output, that is A is key 1, B is key 2 and Y is the glowing of lamp or on of the lamp. So when the 2 keys are open, bulb will not glow. That means when A0, B0, Y is also 0. When
we open B but we close A, then current will flow along this path and the bulb will glow. So when A equal to 1, B equal to 0, Y equal to 1. Again the reverse case is, if this is open, A is open but B is closed, then current will flow along this circuit and bulb will glow. So if A equal to 0, B equal to 1, again Y equal to 1. Next, if we close two keys, then current will flow along this line or both line and the bulb will glow, that is 1 1 1. So here this 0 or 1, that is A and B, is said input and Y is called output. 0 is said as low, 1 is said as high state. So we can say that when input is high, if any of the input, so if any of the input or both input are high, that is 1, output will be 1. Output will be 1. This type of table is known as truth table. This is known as truth table, which can give as the combination of input and output. So this is called truth table. Now this is the circuit diagram. This is not circuit diagram. This is an example of OR gate. We can construct it in an electronics board. But what is the circuit diagram or symbol of OR gate? OR gate is represented by this type of symbol. It has 2 or more output, but minimum 2 number of output is necessary. So A or B are input and output is Y, and its output is written as A or B. This plus is the sign of OR gate. This is not the any algebraical plus. This is the symbol of OR gate. You can read it as A or B. And also we can understand it by the waveform nature. Suppose this type of waveform is given between any time intervals. Suppose this is T1, this T2, this is T3, in the middle is T4, this is T5, and this is T6. Here one input is given as A as this type of wavefront. Another input B is given as the other input B, as there are required minimum 2 number of inputs. So we can also given the inputs as B, as suppose B is along this type. And you are asked to get what will be the output of this wavefront. So in this picture, the upper region, when it is upper, it is called 1. When it is lower, it is called 0. So from the truth table we get when A equal to 0, B equal to 0, Y equal to 0. There is, if we take the time interval on the right side, that is less than time t is less than t1. t1 से पहले ये 0 है, ये 0 है, a0 b0, a equal to 0, b equal to 0, and y will also 0. So you can get the output waveform as 0. इसको अभी थोड़े नीचे
आउटपुट वेवफॉर्म एज 0, ये है आउटपुट y. सो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. Again from T1 to T2, here from T1 to T2, A आप में है, that is A1, but sorry A आप में है और B 0 है. So A equal to 1, B equal to 0. So output will be 1 because any of the input is high, output will be high. So A equal to 1, B equal to 0, Y equal to 1. A equal to 1, B equal to 0, Y will be 1. This type. Y is 1. ये है 1. Next, T2 to T3. T2 to T3. A1, B1. So both inputs are high. Output is also 1. So here we can get this. This is 1. This line is 1. If it will be 0, then this will be in downward. Okay. This is 1. So T2 to T3 output is 1. Now T4. For T4, A is 0 because it's lower, but B is high. So T3 to T4, A0, B1. So output is also 1. Output is also 1 means output 1 में ही रहेगा. T4 to T5, A0, B0. T4 to T5, ये A0 है, B भी 0 है. So T4 to T5, A0, B0. A0 में है, T4 to T5 और B भी 0 में है. तो क्या होगा? आउटपुट भी 0 में ही रहेगा. So 0 मीन्स यहाँ से नीचे जाएगा और 0 हो जाएगा. ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है. अब T5 से T6, T5 to T6. T5 में अप है और T6 में डाउन है. ये डाउन है, ये अप है. सो A equal to 1. A equal to 1, but B equal to 0. But here output, sorry, here output will be 0. Output will also be 1. So here output is also be 1. And after T6, that is beyond T6, क्या होगा? ये 0 है, A0, but B is on up. B equal to 1. So Y will be up. Y will be 1 होगा. So A0, B1, A0, B1, Y will be 1. ऐसे जेई में और इन पे सवाल आता है कि वेवफॉर्म इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म देता है और इनपुट में का जो दो वेवफॉर्म है वो आपको दिया जाता है, उसके बेसिस में आपको आउटपुट वेवफॉर्म निकालना होता है और ऑप्शन होता है, उसमें आपको टिक देना होता है. ओके, तो ये है OR गेट का सिंबल और ट्रुथ टेबल एंड द वेवफॉर्म. नेक्स्ट वी गो विथ एंड गेट. एंड गेट के भी ये हम देखेंगे कि यह क्या होता है. एंड गेट में सिमिलर वेवफॉर्म, सिमिलर वेवफॉर्म आउटपुट हम डिलीट कर देते हैं अभी. सिमिलर वेवफॉर्म फॉर एंड गेट. एंड गेट एंड गेट में जो हम समझ गए एंड गेट. एंड गेट में अगर दोनों इनपुट हाई है तो ही आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा. एक इनपुट हाई, एक इनपुट अगर लो है तो इसका आउटपुट 0 आएगा. तो अगर हम देखें ऐसे सर्किट, ऐसा अगर सर्किट देखिए, यहां पर वोल्टेज है तो ये ए बी. तो ये आप देख सकते हैं कि अगर A0 B0, अगर A0 B0 इसका कॉरस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल हम यहां राइट करते हैं. ट्रुथ टेबल A B एंड Y. A B है इनपुट, Y है आउटपुट.
अगर ए ओपन है, बी ओपन है, करंट विल नॉट फ्लो, देन बल्ब विल नॉट बी ग्लो और ऑन. सो A0 B0 मीन्स Y ऑल्सो 0. नेक्स्ट, अगर ये क्लोज है दैट मीन्स ये 1 हो गया. क्लोज मीन्स वंस, ओपन मीन्स 0. सो A1 B0, so Y will also 0 because current will not flow due to this breaking of circuit. So A1 B0 output is also 0. सिमिलर होगा अगर A1 ओपन और B को क्लोज कर दिया जाए, फिर भी आउटपुट 0 होगा. A0 B1 आउटपुट 0 ही रहेगा. लास्ट जो है फोर्थ, वो दोनों के ही अगर क्लोज कर दिया जाए दैट इज A1 B1, अगर A1 है B1 है तो ही आउटपुट 1 में आएगा और लैम्प ग्लो करेगा. तो ये हो जाता है एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 और 1 1 1. इसको लिख लीजिए, बाद में हमको नैंड गेट पढ़ने के बाद ये हमको लगेगा. ओके, सो इसका जो सिंबल है एंड गेट का ऐसे है. सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ए बी दोनों इनपुट है और आउटपुट है Y. इसको हम कहेंगे A एंड B. बीच में एक छोटा सा डॉट है, इसको हम कहते हैं एंड. A एंड B. अभी सेम वेव फ्रंट एंड गेट के लिए कैसा होगा हम देखेंगे. ओके, सो A और B हमको दिया गया है. अभी देखिए T1 से पहले A 0 में है, B 0 में है, तो आउटपुट Y भी 0 में ही रहेगी. नेक्स्ट, T1 टू T2 A है 1, मगर T1 को T2 B है 0, सो आउटपुट ऑल्सो 0. T2 टू T3, T2 टू T3, इन टाइम T2 टू T3 A इज 1, B इज 1, आउटपुट इज 1. ऐसे 1 हो गया, ये 0 है और ये हो जाता है हमारा 1. नेक्स्ट, A0 B1 आउटपुट इज 0. A0 B0 आउटपुट इज ऑल्सो 0. अभी A1 B0 आउटपुट इज ऑल्सो 0. तो T6 तक, अभी T जो 6 है, T3, ये T4, ये T5, T6 तक ऐसा होगा. और T6 के बाद A0 B1 आउटपुट इज ऑल्सो 0. तो ऐसे होगा जो एंड गेट का आउटपुट वेवफॉर्म सेम वेवफॉर्म के लिए. ये आपको दूसरी भी दे सकते हैं एग्जामिनेशन में कि ये ऐसे हुआ लेकिन ये कुछ और हुआ, तो आपको ये ट्रुथ टेबल यूज करके ये निकालना होगा. आई होप आप ये आपको समझ में आ गया है. किसी भी गेट के लिए आप ये कर सकते हैं. नेक्स्ट वी गो फॉर द थर्ड गेट व्हिच इज नॉट गेट. नॉट मीन्स नहीं, नहीं मीन्स इन्वर्सन. दैट इज इनपुट का जो कॉम्प्लीमेंटेशन और इन्वर्सन है वो है नॉट गेट. इट इज यूज्ड एज एन इन्वर्टर. इन्वर्टर सर्किट में ऐसे गेट का यूज करा जाता है, नॉट गेट. हमारा तीसरा जो गेट है वो है नॉट गेट. नॉट गेट इज नथिंग बट इन्वर्सन. नॉट मीन्स इन्वर्सन, रिवर्स. अभी अगर ऐसे कोई सर्किट हमें दिया जाए कि यह है वोल्टेज, यहां पर जो है एक की है और यहां पर बल्ब ग्लो कर रहा है. इसमें एक ही इनपुट रहता है. एंड गेट और गेट में जो दो इनपुट है लेकिन इसमें एक ही इनपुट रहता है. यह है सिंगल इनपुट गेट, नॉट गेट. तो इसमें जाहिर है कि ये अगर ए हुआ, अगर ए क्लोज है, क्लोज मीन्स 1, ए 1 है तो Y क्या होगा? लैम्प ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? विल लैम्प ग्लो और नॉट? नॉट, बिकॉज अगर ये क्लोज हो जाता है तो करंट इस डायरेक्शन में आके इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, लैम्प तक नहीं जाएगा, तो Y विल बी 0. अगेन अगर ये खुला रहा, ओपन रहा, A इक्वल टू 0, then current will not flow in this direction, current will flow along this direction and the bulb will glow, so Y equal to 1. So the truth table is A equal to 0, Y equal to 1, A equal to 1, Y equal to 0.
that is output is high when input is low and input is high, output is low when input is high and output is high when input is low. The circuit diagram of the NOR gate is, as it is single input gate, so A, यहाँ से एक छोटा बबल होगा, ये बबल है इन्वर्सन का साइन, सो y इक्वल टू A, इसको हम, इसके माथा में जो है बार, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन और नेगेशन, नेगेशन साइन, इट इज द साइन ऑफ नेगेशन. इसको हम कहेंगे A is negated and equals to y, equal to a bar. A is negated and equals to y equal to a bar. So हम बेसिक गेट हमने जान लिया कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट की. अब हम जाएंगे यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल गेट जो है नॉट और नैंड है. इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इन्वर्सन कर देना है एंड और गेट को, एंड और गेट को हमें जस्ट इन्वर्सन कर देना है. सो नैंड गेट इज एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट इक्वल टू नैंड गेट. अभी एंड गेट का सिंबल क्या है, ऐसा है, ये 2 इनपुट गेट है ए बी, इसको नॉट गेट से इन्वर्सन कर दिया जाए तो y क्या होगा. अभी देखिए ये एंड गेट है, मींस यहां मिलेगा a एंड b. अभी ये होगा a एंड b का जो बार. सो एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसमें हम अगर 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें नैंड गेट मिल जाएगा. कैसे, ए बी वाई. अभी देखिए आपका जो y इक्वल टू ए बी बार. सो एंड गेट के लिए क्या था, 0 0 में 0 था, लेकिन ये ए बी बार है, सो यह हो जाएगा 1 1 0. एंड गेट में क्या था, 0 था, लेकिन यह हो जाएगा 1 0 1. एंड गेट में 0 था, यह हो जाएगा 1, और 1 1 एंड गेट में था 1, लेकिन यह हो जाएगा 0. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. when both inputs are high, output is low. ये नैंड गेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब इसका जो सिंबल है, नैंड गेट का जो सिंबल है वो है एंड गेट की तरह ही. एज इट इज इन्वर्सन ऑफ एंड गेट, सो हमें यहां पर एक बबल यूज कर लेना है और हमें लिख लेना है y इक्वल टू ए डॉट और ए नॉट बी बार और नेगेशन ऑफ ए एंड बी. ठीक है, ये हो जाता है मेरा नैंड गेट. अभी हम देखेंगे नॉर गेट. नॉर गेट इज रिवर्स ऑफ और गेट. सो नॉर गेट नॉर गेट में हमें और गेट का रिवर्स मिलेगा. अब ट्रूथ टेबल को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं. और गेट कैसा था, ऐसा था. ये भी 2 इनपुट गेट है, सॉरी ये भी 2 इनपुट गेट है ए बी. अब इसको भी नॉट गेट मिल गया. सो यह आ गया ए और बी, और y इक्वल टू आएगा ए और बी का नेगेशन और बार. इसका जो सिंबल है, अगर इसका इक्विवेलेंट सिंबल हम देखें तो क्या होगा, और गेट का जो सिंबल है ऐसे ही होगा, लेकिन यहां पे छोटा बबल हो जाएगा. ये होता है हमारा नॉट गेट. y इक्वल टू ए और b इसका बार. सो यह क्या होगा, 0 0 0 था, लेकिन यह हो जाएगा 1 1 0. और गेट में क्या था, 1 था. 1 0 और गेट में क्या था, 1 था, यह हो जाएगा 0 0 1. और गेट में क्या था, 1 था, यह हो जाएगा 0
और 1 1 भी और गेट में 1 था, लेकिन यहां हो जाएगा 0. सो हियर व्हेन एनी ऑफ द इनपुट, व्हेन एनी ऑफ the input is high, output is low. ये है NAND और NOT गेट में डिफरेंस. When any of the input, output लो हो जाएगा. Both inputs are low, output is high. अब इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? Why NAND गेट और NOT गेट is called यूनिवर्सल गेट? इसके लिए हमें डी मॉर्गन्स का 2 थ्योरम जानना पड़ेगा. डी मॉर्गन्स का थ्योरम, डी मॉर्गन्स का फर्स्ट थ्योरम क्या है और सेकंड थ्योरम क्या है? फर्स्ट थ्योरम यह कहता है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि द सम, होल सम ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल. दैट इज ए और बी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, और वाइस वर्सा, दैट इज ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार और बी बार. ये है डी मॉर्गन्स का 2 थ्योरम. ये हमें बुलियन अलजेब्रा में बहुत बार काम आएगा, गेट का ट्रांसफॉर्मेशन में काम आएगा, जो हम अगले दिन जानेंगे. तो नैन गेट से और नॉट गेट से हम एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट को बना सकते हैं. तो हम पहले देखेंगे कि नैन गेट से हम कैसे नॉट गेट फॉर्म करते हैं. अगर नैन गेट का दोनों जो इनपुट है, नॉन गेट का दोनों जो इनपुट है, उसको अगर शॉर्ट किया जाए और तो ये एक ही इनपुट की तरह काम आता है. ये ए और बी है, लेकिन अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो दोनों ही ए हो जाता है और इनपुट भी ए होता है. देन इसका जो आउटपुट है वो हो जाता है नेगेशन ऑफ ए, दैट इज ए बार. तो व्हेन बोथ द इनपुट्स ऑफ ए नॉट गेट आर शॉर्टेड, देन इट इज बिहेव एज नॉट गेट. Number 2, NAND gate, sorry, AND gate. Number 2 is AND gate. देखिए NAND gate है ऐसे, दोनों इनपुट है ए बी. अभी आउटपुट में क्या आएगा? अभी हमने पढ़ा ए एंड बी बार. अब इसको जो दूसरी AND गेट है उसका दोनों इनपुट शॉर्ट करके उसको दिया जाएगा. तो अगर ये ए बी बार है तो ये भी ए बी बार है, ये भी ए बी बार है, सिंगल इनपुट हो जाता है. दोनों इनपुट को शॉर्ट करने से क्या होता है? सिंगल इनपुट. इट बिहेव्स लाइक ए सिंगल इनपुट. सो ए बी नॉट गेट का आउटपुट फर्स्ट गेट, ये हम कहते हैं G1, इसको हम कहते हैं G2 नॉट गेट, नैन गेट. सो G1 के जो होता है ए डॉट बी बार, अभी ये सिंगल इनपुट की तरह काम आएगा. तो यह हो जाएगा क्या? ए एंड बी बार है, इसका भी बार हो जाएगा, इसका बार हो जाएगा, इसका भी नेगेशन हो जाएगा ऐसे. सो बार का बार क्या होता है? ये सीधा है, इसको हम उल्टा किया, इसको फिर उल्टा किया तो सीधा हो जाएगा. सो बार का बार मतलब सिंपली ए एंड बी. तो ये देखिए नैन गेट यूज करके हम एंड गेट फॉर्म कर सकते हैं. नंबर 3 इज ऑर गेट. कैसे फॉर्म कर सकते हैं? 2 नैन गेट्स whose inputs are sorted. एक को हम देते हैं इनपुट ए एंड दूसरे को हम देते हैं इनपुट बी. तो अगर ये ए है तो इनपुट ए हो जाएगा, इसका इनपुट बी हो जाएगा. अभी ये दोनों एक नैन गेट में इनपुट हम देखेंगे. ये नैन गेट है, ये बबल देना जरूरी है, नहीं तो ये एंड गेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये ए है तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए बार, ये बी है आउटपुट हो जाएगा बी बार. अभी यह जो है ये एज नैन गेट, सो यह हो जाएगा ए बार बी बार उसका बार. देखिए ए बार बी बार उसका जो बार है इसको हम कह देंगे
ए बार बार प्लस बी बार बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। सो ए बार बी बार बार, ए बार बी बार का बार, या ए बार होता ए बार बार होता और बी डबल बार। सो डबल बार मीन्स वही आएगा ए प्लस बी, डबल बार मीन्स वो बार हट जाता है, ए प्लस बी। सो ऐसे ही हम नॉट गेट को एंड गेट, और गेट और नॉट गेट में फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप करिए और जो एक्सरसाइज बुक है उसका स्क्रीनशॉट हमें यूट्यूब चैनल में जो कमेंट सेक्शन है उसमें भेजिए। तो हम आज जानेंगे कि बेसिक गेट क्या है और यूनिवर्सल गेट क्या है, क्यों उसको बेसिक, क्यों उसको यूनिवर्सल माना जाता है। इसके दूसरे दिन हम एक्स नॉर, एक्स और गेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, मेरा चैनल का नाम है फिजिक्स जैन। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, क्योंकि बहुत कुछ जानना बाकी है, हम लोग जानेंगे लेकिन सहज सरल भाषा में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।